Okay, let us start. Good morning. Okay, so today we will learn what design of, we are learning the design of the rigid pavement. Okay, and in the Yes, ma'am. rigid pavement, we have seen that what we have to design. We have to design what is the slab thickness, what are the different stresses developed in the pavement. Okay. Yes, ma'am. Okay, wait, what happened? And we have to learn what are the different types of the stresses developed in the rigid pavement, okay, and what, how to calculate those stresses. And after that we learn the design of the joints in the rigid pavement. Basically there are two types of the joints, okay, one is the longitudinal and another is your transverse, and within the transverse we have to design that joint. Which, what is that joint? That joint is your contraction joint and your expansion joint. We have completed that one. Okay, now today what we will do, we see in those joints, since joint is what, it is the weak portion. Wherever there is a presence of joint, that means what, there is discontinuity, slab has been discontinuous. Okay, then what happens, because of the discontinuity, then that structure will become, or that particular region will become very weak, right? So if will load is applied on that section, on that particular joint, above the joint, then what happens, there will be chances of failure, there will be chances of cracking and all. Okay, so in order to prevent all these kind of failures, what we are doing, based on the types of the joint, we are providing two types of the reinforcement. Okay, see, based on the type of the joint, we are providing two types of the reinforcement. The joint, this is the longitudinal joint. Longitudinal joint means what? Suppose this is the top view of the pavement. Okay, you are looking from the top. Now this is the direction of the traffic. That means your traffic will move in this direction. Okay, and in this direction. And the joint which is parallel to this Yes, ma'am. direction is this one, right? And this joint is known as the longitudinal joint. Okay, so the reinforcement provided within this joint, this means here we are providing some bars. Okay, some reinforcing bars are provided in this joint. Okay, like this. So this joint is known as the tie bar. Sorry, this type of the reinforcement is known as the tie bar. Okay, so in the Yes, ma'am. longitudinal joint, which bar we are providing? We are providing the tie bars. Okay, whereas in transverse joint, we will learn in our next lecture. In transverse joint, we are providing the another kind of reinforcement, which is the dowel bar. So please remember, tie bar is provided in the longitudinal joint. Okay, so this is the longitudinal joint. So these are the reinforcement, and these are known as the tie bars. Okay, so here Yes, we ma'am. have to design this tie bar. So in steel structure or in a structural design, what you have learned? You have learned that design of a reinforcement means what? We have to design the number of reinforcement required, number of reinforcement bars required. Okay, that has to be placed over a span of a slab or a beam. Okay, and what, the spacing among number, how we are calculating? We are calculating number by simply, if we know the spacing between each bar, this is first bar, this is second bar. So what is the spacing between first and second? And what is the spacing between second and third? If we know this spacing, then we can easily calculate the how many numbers of bar has been placed. Okay, say for example, this is 1 meter span. Okay, so within the 1 meter span, if we know the spacing between each two successive tie bar, then we can easily calculate what is the number of the bars. Okay, so once here what we have to design, we have to design number of the bars or the spacing. Okay, any of two, either spacing or number. Ma'am. Another is Okay, ma'am. what is the area of the steel? That means which diameter we are using. Okay, what is the specification of the rod that we are using? So in order to determine the specific diameter, what we have to determine? We have to determine the cross sectional area of this steel. Okay, this rod sectional area. If we know the area of the rod, then easily calculate the rod that has been used. Okay, and the last part that we have to design is the length.
Okay, so there are basically 3 parameters that we have to design in case of tie bar. What? Length, dia, or instead of dia we can say cross sectional area. Okay, and B, your spacing or the numbers. Okay, so these are the 3 parameters, either spacing or number. First, length, second, and third is what? Either diameter. If we know the area, then we can easily calculate the diameter. Okay, so Yes, ma'am. here we have to design length, area, and spacing. Okay, so these are the 3 parameters that we have to design in case of tie bar. Now this is over. Now what do you mean by the tie bar? Okay, why we are providing this tie bar? Okay, so tie bar, what is tie bar? As I said, there may be 2 types of the bars. Okay, one is the deformed steel bar we are using, or deformed epoxy coated steel bar. Okay, these are the 2 types of the bar that we can use for as a in this tie bar. Okay, now what is the function of the tie bar? See, the name itself suggests. इसका नाम क्या दिया है? देखो, it's the name is tie. Now tell me, इसका function क्या हो सकता है? What may be the function of this reinforcement then? इसका नाम है tie bar. Then what is the function of this bar then? ये हम क्यों देते हैं? टाई का मतलब क्या है? What do you mean by tie? rigid slab में देते, rigid slab. Yes, rigid slab. See, these are rigid slab only. This is rigid pavement only. Okay, we are not providing tie bars in bituminous concrete pavement. That is the flexible pavement. Now, what is the function? तुमको क्या लग रहा है कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है? ये टाई बार देखो, ये 2 स्लैब है. ओके, ये 1 लेन, मतलब ये वाला एक रास्ता है, ये वाला एक रास्ता है. ओके, दिस इज 1 लेन, दिस इज अनदर लेन, एडजेसेंट लेन. नाउ टेल मी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टाई बार? क्यों दिया रहता है? अगर टाई बार नहीं देते तो क्या होता? इफ यू वोंट प्रोवाइड दिस रेनफोर्समेंट, देन क्या हो सकता है? सपोज एक गाड़ी यहां से जा रहा है. ओके, ऐसा एक व्हीकल है. ठीक है, दिस इज, यू आर लुकिंग दिस व्हीकल फ्रॉम द बैक. ओके, एंड द व्हीकल इज मूविंग इनटू द पेपर, मतलब इनटू द स्क्रीन, मतलब परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन इसका डायरेक्शन है. ठीक है, ये पीछे से ऐसा गाड़ी दिख रहा है. ओके, तो अब बोलो कि ये टाई बार क्यों देते हैं? अगर ये गाड़ी, अगर हम टाई बार नहीं देते तो क्या होता था? क्या हो सकता था? गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता. फर्स्ट, एक्सीडेंट क्यों होगा? कैसे होता? देखो, अगर ऐसा होता तो ये ड्यू टू लोड ये वाला स्लैब क्या हो जा रहा है? देखो, एंड अगेन वी हैव टू प्रोवाइड द कैम्बर, राइट? एक कैम्बर हम लोग देना पड़ता है. सी, यहाँ पे देखो, देखो, वी हैव टू प्रोवाइड द कैम्बर, राइट? तो ये कैम्बर के लिए क्या देना पड़ता है? वी हैव टू टिल्ट दिस पेवमेंट. ये स्लैब को थोड़ा टिल्ट करके यहाँ पे पुट कर देना है, राइट? वी हैव टू टिल्ट दिस पेवमेंट. अब टिल्ट होने की वजह से क्या आ रहा है? बिकॉज ऑफ द लोडिंग इट हैज अ टेंडेंसी, स्लैब हैज अ टेंडेंसी टू मूव अवे. मतलब ये स्लैब इस तरफ एज में जाएगा, ये वाला स्लैब इस तरफ एज में मूव कर रहा है. ओके, दिस इज मूविंग दिस साइड एंड दिस इज मूविंग दिस साइड. तो क्या हो जा रहा है? दे बोथ द स्लैब विल सेपरेट, विल गेट सेपरेटेड, राइट? मतलब बीचों बीच से पूरा रास्ता है तुम्हारा सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, राइट? सो दोनों को एक साथ रखना है. इन ऑर्डर टू पुट दोस 2 एडजेसेंट स्लैब टुगेदर, व्हाट वी आर डूइंग? वी आर प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट. और ये क्या कर रहा है? ये टाई कर रहा है, दोनों स्लैब को टाई करके रख रहा है. इसलिए that's why इसका नाम क्या है? It is known as tie bar. मेन काम है दोनों स्लैब को एक साथ अटैच करके रखना है, जोड़ना. वेरी गुड. ओके, और एक होता है प्रॉब्लम कि डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन हो जाता है. देखो, यहाँ पे अगर लोड है, यहाँ पे सपोज लोड नहीं है, तो लोड की वजह से क्या हो रहा है? ये वाला स्लैब नीचे धंस रहा है कंपेयर टू दिस वन. ओके, इट इज डिफ्लेक्टिंग, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है. ओके, और ये वाला अपना जगह पर ही था क्योंकि यहाँ पे कोई व्हीकल लोड नहीं है. ठीक है, इससे वजह से क्या हो जाएगा? अगेन देयर विल बी सम डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन. तो वो भी होना नॉट गुड, राइट? वो भी नहीं होना चाहिए. तो दोनों स्लैब को एक ही लेवल में मेंटेन करके रखने के लिए ही हम लोग टाई बार दे रहे हैं. ओके,
सो Yes, ma'am. दो केस है, एक है फॉर टू प्रिवेंटिंग डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन एंड टू कीप द टू स्लैब्स टुगेदर. ओके, सो दीज आर फॉर्मली टुगेदर, दीज आर द मेन पर्पस ऑफ द टाई बार. ओके, नाउ फंक्शन यहाँ पे क्या दिया है देखो, होल्ड द फेस ऑफ द, और अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्या होता है, ये जो साइड में भी हम लोग टाई बार दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी टाई बार्स लग सकता है. तो एडजेसेंट का जो भी कर्व है या जो भी अगर ब्रिज है, तो ब्रिज में क्या हो जाता है, साइड में अबैंडमेंट रहता है, राइट, तो वहां पे भी ये टाई Yes, करके रख सकते हैं. ओके, सो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ द टाई बार. मेनली तो वो है कि टाई करके रखना है दोनों को एंड डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन को वो करना है. बट दिस इज नॉट डिजाइन फॉर द लोड, मतलब टाई बार में लोड आएगा ऐसा नहीं है. ओके, विल लोड एक्ट करेगा, उसकी वजह से हमको डिजाइन नहीं करना है टाई बार में. दैट वी हैव टू डिजाइन इन केस ऑफ डावल बार. डावल बार को जब ट्रांसवर्स जॉइंट में हम लोग कोई रेनफोर्समेंट देते हैं, दैट इज द डावल बार. ओके, तो इन केस ऑफ डावल बार वी हैव टू कंसिडर द विल लोड. ओके, वहां पे विल लोड का कैलकुलेशन में काम आएगा. ओके, बट टाई बार फिर किस फोर्स को रेजिस्ट करेगा, टाई बार विल रेजिस्ट दी योर फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, इसको रेजिस्ट करता है. मेनली टाई बार में क्या फोर्स जनरेट होता है, टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है. किस वजह से टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्यों बोले, ये वाला देखो, ये क्या हो रहा है, ये वाला इस तरफ मूव करने का कोशिश कर रहा है, राइट, ये वाला इस तरफ मूव करने का कोशिश कर रहा है, तो इसकी वजह से नीचे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा. अब ये वाला फ्रिक्शन को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको टाई कर रहे हैं, जिससे कि ये जो फोर्स की वजह से ये मूवमेंट होने का चांस है वो रुक जाएगा. अब देखो ये वाला मूवमेंट कहाँ पे है, इस तरफ में है, तो ये वाला स्टील में क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपेंशन, सॉरी टेंसाइल की कंप्रेशन. टाई बार में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा इन सच केस, ये स्लैब इस तरफ मूव करने का कोशिश कर रहा है, मतलब क्या है, ये स्टील रॉड को भी खींच रहा है, राइट. सो Yes, ma'am. यहाँ पे बेसिकली स्टील में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे भी तुम्हारा इस तरफ में फोर्स है, यहाँ पे भी इस तरफ में फोर्स है. टेंसाइल. यस, सो दिस इज टेंसाइल फोर्स. तो जनरली यहाँ पे हम Yes, लोग ma'am. को कौन सा फोर्स कंसीडर करना है, टेंसाइल फोर्स. ओके, एंड दिस टेंसाइल ma'am, फोर्स tensile. मस्ट बी केप्ट इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स. मतलब इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा उसके साथ इसको इक्वेट करके हमको डिराइवेशन करना है. ओके, ये याद रखना है. ओके, मतलब जैसे तुम लोगों ने पिछले क्लास में किया था वैसा ही कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स के लिए, वैसा ये वाला भी कॉन्सेप्ट. Okay, ma'am. अब देखो यहाँ पे क्या है, लोकेशन कहाँ पे दे सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल में देना है, कितना डेप्थ में देना है, मिडल डेप्थ, मतलब कि अगर स्लैब थिकनेस h है तो कितना नीचे में देना है, h/2, ऊपर से h/2 डिस्टेंस नीचे हमको वो टाई बार बिठा देना है. ओके, कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं, कर्व में दे सकते हैं, शोल्डर में भी दे सकते हैं, कहाँ पे, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट में तो देना ही है. अपार्ट फ्रॉम लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, मतलब जो एज में है, शोल्डर और तुम्हारा पेवमेंट के बीच का जो जॉइंट होगा उसमें भी दे सकते हैं. ओके, ये जो देखा एज जॉइंट. ओके, these are the location of installation. पर्पस, डिजाइन पर्पस क्या है, मेनली क्यों हम लोग दे रहे हैं, वही दोनों को स्टिक करके रखना है. अब स्टिक कैसे करोगे, क्योंकि वो स्लैब इस तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हम लोग बोले थे टेंशन क्रिएट हो रहा है. ओके, सो टू रेजिस्ट दैट, टू विस्टैंड दैट टेंसाइल स्ट्रेस जो जनरेट होगा स्लैब मूवमेंट की वजह से, आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से जो टाई बार में स्ट्रेस जनरेट होगा, उसको विस्टैंड करने के लिए हम लोग ये दे रहे हैं. सो फंडा क्या है, तो हमको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स इन द टाई बार, एंड आल्सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बॉटम ऑफ द स्लैब एंड द बेस फोर्स. मतलब कि ये स्लैब हुआ, सपोज दिस इज द स्लैब एंड दिस इज द बेस फोर्स, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो एक फोर्स डेवलप करो, इक्वेशन निकालो, और ये जो स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा उसका इक्वेशन निकालो, दोनों को इक्वेट करना है. तो यही है तुम्हारा फंडा. ओके, this is the funda that we are using. Now comes measurement of the tie bar, or we can say the specifications of the tie bar. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं in your design case, in case of design of any reinforcement, what we are doing, we are assuming the values. Initially हम लोग बोलते अच्छा इतना डाया का रॉड ले लेते चलो, फिर चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं. ओके, एक्सटर्नल फोर्स को ये रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं उतना डाया यूज करने के बाद. ओके, सो हियर आल्सो व्हाट वी आर डूइंग, वी विल एज्यूम द पैरामीटर्स. ओके, जो है तुम्हारा ये सब देखो, ठीक है, फिर देन वी विल डिजाइन एंड डू चेक.
कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जो भी एज्यूम किया था वो वाला रॉड लेकर हम लोग जो डिजाइन करेंगे वो ठीक होगा कि नहीं होगा, फेल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, वही चेक करना है। सो उससे पहले व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन कि कितना कितना डायामीटर का ले सकते हैं, कितना लेंथ ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना लेंथ प्रोवाइड करना पड़ता है, मैक्सिमम स्पेसिंग कितना देना है, ठीक है। सो दीज आर दोज वैल्यूज। सो डाया must lie between 12 mm to 16 mm, थोड़ा ये याद रखना है, ओके। डाया ऑफ द टाई बार मतलब 12 mm to 16 mm। मिनिमम लेंथ बोला है, मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, 64 to 80, इसके बीच में मिनिमम लेंथ देना है, उससे नीचे नहीं, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसिंग क्या है, मैक्सिमम स्पेसिंग मतलब 60 to 100 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द डाया ऑफ द रॉड्स, ओके। सो क्या है, मिनिमम लेंथ है 64 to 80, मैक्सिमम है 60 to 100, ओके। तो अब देखो ये वाला हम लोग अगर बड़ा करके देखेंगे तो कैसे ले कर रहे हैं हम लोग, एंड बेसिकली हम लोग डिजाइन करेंगे पर मीटर स्लैब के लिए, ठीक है, पर मीटर लेंथ ऑफ द स्लैब के लिए। देखो रास्ता तो तुम्हारा 1000 किलोमीटर मतलब बहुत 5000 किलोमीटर बहुत ज्यादा भी हो सकता है, राइट। तो हम क्या थ्रू आउट जितना स्ट्रेच ऑफ द रोड है पूरा उतना नंबर ऑफ रॉड निकालेंगे, नहीं। देन व्हाट वी विल डू, हम लोग बोलेंगे चलो पर मीटर का निकालते हैं, फिर जितना भी नंबर लेंथ आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ओके। सो व्हाट वी आर डिजाइनिंग फॉर दी कितना लेंथ ऑफ द स्लैब पर मीटर लेंथ, मतलब कितना स्ट्रेच रोड लेंथ ले रहे हैं हम लोग, रोड का कितना लेंथ होगा 1 मीटर, ओके। सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 1 मीटर इज द स्पैन वेयर वी आर लेइंग आवर टाई बार, ओके। तो एक रास्ता का स्ट्रेच ले रहे 1 मीटर, उस 1 मीटर में कितना नंबर ऑफ रॉड्स लगेगा, स्पेसिंग क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, वो हम लोग निकालेंगे। तो 1 मीटर का अगर हिसाब पता चल जाएगा तो टोटल लेंथ जितना भी हो हम जस्ट मल्टीप्लाई करने से टोटल नंबर भी निकल आएगा, ओके। यस मैम। सो अब देखो लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। बी इज जो भी स्लैब का थिकनेस, या इसको हम लोग लेन विथ भी बोल सकते हैं, अगर ये एक लेन है तो दिस इज 3.5 भी हो सकता है, ओके, इफ स्लैब विथ इज नॉट गिवन, ठीक है। तो ये B इज इन मीटर, L इज इन 1 मीटर एंड थिकनेस इज इन सेंटीमीटर, ओके, H इज इन सेंटीमीटर, ये जो थिकनेस ऑफ द स्लैब है, ओके। और टाई बार दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, सो डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक इज पैरेलल टू द जॉइंट, ओके। एंड दिस टाई बार्स आर प्लेस्ड, हमेशा याद रखना एमसीक्यू में आएगा, टाई बार्स किस डायरेक्शन में प्लेस करते हैं हम लोग, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, कौन सा होगा बोलो तो। Tie bars are placed in which direction? Tie bars are laid in parallel to the direction of the traffic or 90 degree to the direction of the traffic. बोलो, ये अभी हम क्वेश्चन दे दिए तुम लोग को, बोलो। 90। यस 90 डिग्री, ठीक है, इसके direction of the track. पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल इज द जॉइंट, कौन से जॉइंट में हम देते हैं, उस जॉइंट में देते हैं विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, बट हम लोग का ले किस डायरेक्शन में करते हैं, 90 डिग्री में, ओके। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, वैसे डाउल बाल का भी उल्टा हो जाएगा, ओके। तो देखो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट एंड दिस आर द टाई बार, डैश डैश करके ये वाला हम लोग सेक्शन में देख रहे हैं, ऐसा लिखेगा, ओके। तो इसका हम लोग डाया बोले थे 12 to 16 mm, लेंथ है 64 to 80 एंड स्पेसिंग इज तुम्हारा ये जो 60 सेंटीमीटर टू 100, मतलब 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली लग रहा है, ठीक है, मैक्सिमम। नाउ ये तो हो गया assumptions जो भी है, ओके। नाउ लेट अस गो टू द डिजाइन, कैसे डिजाइन करना है। तो हम बोले थे डिजाइन का मेन फंडा क्या है, ये वाला, ओके, दिस इज द फंडा। पहले टेंसाइल फोर्स इन टाई बार निकालो एंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन पेवमेंट स्लैब एंड द लोअर, जो भी फोर्स होगा उसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसका फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, दोनों को इक्वेट करना है, ओके। तो चलो करते हैं। तो डिजाइन में आते हैं हम लोग, देखो दिस इज द टेंसाइल, ये स्लैब क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ द लोड इट इज ट्राइंग टू मूव आउटवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड की वजह से इसमें क्या स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ये जो आउटवर्ड ये भी खींच रहा है, राइट। सो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है एंड दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। ये इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब एक्ट करेगा। सो ये दोनों को इक्वेट करना है हमको, ओके। सो दिस इज व्हाट, ये है टेंसाइल स्ट्रेस एट द स्टील,
ओके। Yes, ma'am. पर रॉड में टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है अक्रॉस द सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन में उसका जो एरिया ऑफ रॉड जो भी है डाया का क्रॉस सेक्शन है उसमें परपेंडिकुलरली ये वाला स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, एंड दिस इज व्हाट टेंसाइल स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब कोई प्रेशर पकड़ो, ओके। सो स्ट्रेस से कितना फोर्स जनरेट होगा, तो टेंसाइल फोर्स ही जनरेट होगा, तो वही हमको कैलकुलेट करना है। सपोज टोटल एरिया ऑफ स्टील 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर स्पैन में सपोज हम लोगों ने ये इतना सारा रॉड लगाया है, ठीक है। वी डोंट नो दैट नंबर, वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। सो तो ईच रॉड का एरिया है सपोज स्मॉल ए एस, ओके, स्मॉल ए एस। सो व्हाट इज द टोटल एरिया, n into small as, ये हम लोग कर सकते हैं, Yes, ओके। नाउ लेट अस एज्यूम द टोटल एरिया इन ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, सबको मिलाकर क्रॉस सेक्शन का जो भी मतलब पाई डी स्क्वायर बाय 4, अगर इसका डाया d है सो ए एस इज व्हाट पाई डी स्क्वायर बाय 4, सो टोटल नंबर ऑफ रॉड इनटू पाई डी स्क्वायर बाय 4 इज ए एस सपोज, ठीक है। तो टोटल फोर्स Yes, जनरेटेड कितना होगा, तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू, देखो एवरी क्रॉस सेक्शन में एस एस सी जनरेट हो रहा है, ओके। वी नो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू है तुम्हारा स्ट्रेस इनटू एरिया, राइट, ये हमको पता है। फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। अब बोलो ईच एरिया, ईच में तुम्हारा कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंसाइल फोर्स ईच रॉड में एक्ट कर रहा है एस एस इनटू ईच रॉड का एरिया कितना है, हम बोले थे स्मॉल ए एस, ओके, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना होगा सब में, टोटल फोर्स सब में कितना हो जाएगा, सपोज n नंबर ऑफ रॉड है, ठीक है, ये है तुम्हारा ईच रॉड में कितना स्ट्रेस है, टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है कितना, ठीक है। सो इफ देयर इज n नंबर ऑफ रॉड्स तो टोटल F will be how much, total F will be n into fi, right, n into fi, okay, Yes, where n is equals to, n को नंबर लिख देंगे हम लोग s s and as, sorry, as, small as, okay। now this into this is what, this into this is nothing but the मतलब as into n, as हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, ये दो टोटल इज इक्वल्स टू कैपिटल as, ओके। तो दिस इज व्हाट, अगर n नंबर ऑफ रॉड है, ईच रॉड का अगर एरिया as है तो सो n as इज द टोटल as, तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल फोर्स, टेंसाइल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, s s इनटू कैपिटल as, राइट, ये लिख सकते हैं ना हम लोग। तो Yes, देखो ma'am. यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है, तो मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स इन ऑल 1 मीटर स्लैब में जितना भी रॉड है उसका टोटल टेंसाइल फोर्स इज as इनटू ss, ओके। ऐसे हम लोग डिराइव किया है ये वाला, ओके। नाउ अब आते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बॉटम ऑफ द स्लैब एंड द बेस फोर्स, मतलब एक्चुअली क्या है कि ये वाला स्लैब में कितना फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, ओके। सो पर्टिकुलरली एक स्लैब में कितना फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला, एनीवन? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या था, म्यू इनटू एन, या Yes, ma'am. वेयर म्यू को हम लोग F लिख सकते हैं और n को हम लोग सेल्फ वेट लिख सकते हैं, नॉर्मल जो वेट लिख सकते हैं उसका, ठीक है। नाउ W इक्वल्स टू क्या था, वेट इज इक्वल्स टू क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी को हम गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्लैब, अब ये वॉल्यूम ऑफ द स्लैब कितना है बोलो, ये वाला स्लैब का वॉल्यूम, ये वाला स्लैब का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, Length into breadth into height. यस, लेंथ इन, मैम एरिया हाँ, एरिया इनटू हाइट, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, सो L इनटू B इनटू H, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट Yes, ma'am. देखना है हमको, ओके, वी हैव टू मेंटेन द यूनिट, सी L इज इन मीटर, B इज इन मीटर, H इज इन सेंटीमीटर, सो H विल बी इन योर मीटर से, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देना है, इनटू गामा इज नथिंग बट द गामा C, मतलब ये कंक्रीट है तो इसका यूनिट वेट कितना है, इसका डेंसिटी कितना है, गामा C, ओके। तो ये यहाँ पे किया है, देखो F into weight of the slab, F into ये है वॉल्यूम, ये है डेंसिटी, सो
यहाँ से आ गए। अगर लेंथ इक्वल टू कितना लिए थे हम लोग, 1 मीटर लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग 1 मीटर पुट कर दो, लेंथ का वैल्यू हमको पता है। ओके, तो करने के बाद देखो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए एस विल बी एफ कैपिटल बी एच गामा सी बाय 100 एस एस। So this is the total area of the steel which is required in tie bar in the span of 1 meter। हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे L टर्म रहता तो हमको देने का जरूरत नहीं था। स्पैन इज L मीटर, कितना भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितना भी। ओके, बट हम लोगों ने यहाँ पे L कितना पकड़ा था, हम लोगों ने 1 मीटर का स्पैन पकड़ा था, इसीलिए यहाँ पे दिस इज व्हाट, इसका ये है, दिस इज टोटल एरिया ऑफ स्टील पर मीटर लेंथ ऑफ द स्लैब। ओके, per meter length of the slab। तो ये AS is what, total area of steel per steel, total area of tie bar per meter length of the slab। okay, so this is the formula। Yes ma'am। अगर बोलते सिर्फ टोटल एरिया ऑफ द स्टील देन यहाँ पे L देना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया। AS कैसे कैलकुलेट करना है, सो सी दिस इज द, ये है, सो A इज व्हाट, एरिया पर मीटर लेंथ। ठीक है, F क्या बोले थे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1.5 एज्यूम करना है, B विड्थ ऑफ द स्लैब मीटर में है, H थिकनेस ऑफ द पेवमेंट सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही है क्योंकि ये दिस इज इन ऑलरेडी, ये टोटल इज इन मीटर। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में ही रखना है। गामा सी इस कंक्रीट का यूनिट वेट इफ नॉट गिवन 2400 kg per meter cube। SS क्या था, SS इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन द स्टील। ओके, तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, हम बोले थे दो टाइप का बार होता है, एक प्लेन एक डिफॉर्म। ओके, मतलब एक सरफेस स्मूथ रहता है एक बार का पूरा ग्रूव्स रहता है। ओके, डिफॉर्म का। तो देखो इसका कितना है टेंसाइल स्ट्रेस, इतना है प्लेन के लिए और डिफॉर्म के लिए इतना है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज। तो एरिया ऑफ स्टील हमको यहाँ से आ जाएगा। आफ्टर दिस क्या करना है, स्पेसिंग निकालना है हमको। एरिया निकल आया, राइट, टोटल एरिया निकल आया, अब स्पेसिंग निकालना है। स्पेसिंग कैसे निकलेगा, अच्छा कैसे निकलेगा बोलो तो, स्पेसिंग यू नो द टोटल एरिया। ओके, एंड इफ योर डायमीटर इज गिवन, मतलब ईच रॉड का डायमीटर तुमको दिया गया है एंड यू हैव कैलकुलेट द टोटल एरिया। ठीक है, तो हमको स्पेसिंग कैसे आएगा, स्पैन बाय स्पेसिंग, Spacing स्पैन into बाय diameter। स्पेसिंग। हाँ, Spacing into स्पैन बाय स्पेसिंग इज इक्वल्स टू नंबर, राइट। हम लोग बोल सकते हैं ना, नंबर इज इक्वल्स टू क्या है, स्पैन बाय स्पेसिंग लिख सकते हैं ना हम लोग, Yes, यस मैम। स्पेसिंग लिख सकते हैं हम लोग, राइट। अब नंबर को और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, Yes, ma'am। टोटल कितना टोटल था और इंडिविजुअल कितना एरिया है, ये नहीं लिख सकते, इसको हम लोग इक्वल टू ये भी कर सकते हैं, राइट। ऐसे स्पेसिंग का फॉर्मूला निकलेगा, देखोगे कैसा होगा, लेट्स सी। लेट एरिया ऑफ ईच टाई बार इज AS। AS का क्या है, पाई बाय 4 D स्क्वायर। ओके, ये D अगर दिया रहेगा तो पाई बाय 4 D स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ टाई बार इन 1 मीटर लेंथ, हम लोग को पता था 1 मीटर लेंथ में कितना टोटल एरिया है, इतना। तो नंबर ऑफ टाई बार्स इन 1 मीटर लेंथ ऑफ स्पैन में कितना होगा, या नंबर ऑफ एमी फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टाई बार का फॉर्मूला बोले थे, या नंबर जो भी नंबर का फॉर्मूला है, स्पैन बाय स्पेसिंग। ओके, नाउ यहाँ पे बोलो स्पैन कितना था, 1 मीटर पकड़े थे ना हम लोगों ने। सो नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मीटर स्पैन में कितना नंबर ऑफ बार्स था, AS बाय AS ये भी लिख सकते हैं। और 1 मीटर स्पैन में कितना नंबर ऑफ बार्स होगा, स्पैन को यहाँ पे 1 मीटर बिठा दो, 1 मीटर बोले थे, और स्पेसिंग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर S आ जाएगा कितना, 100 AS बाय कैपिटल AS। ओके, सो AS इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सिंगल टाई बार। कैपिटल AS क्या है, टोटल एरिया ऑफ टाई बार इन 1 मीटर स्पैन। ओके, ये याद रखना। एंड S इज द स्पेसिंग इन सेंटीमीटर। ओके, तो वेयर AS हम लोग बोलते हैं पाई बाय 4 D स्क्वायर। ये क्लियर है स्पेसिंग कैसे निकला है, दिस इज द फॉर्मूला Yes, दैट वी हैव टू यूज। ओके, ओके, अब आता है लेंथ। ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, देख लेना कैसे है। हम बोलते हैं 3 पैरामीटर चाहिए, लेंथ, स्पेसिंग एंड एरिया। एरिया आ गया, स्पेसिंग आया, अब आता है लेंथ। लेंथ के लिए ये वाला फंडा काम में आएगा। ओके, कुछ नहीं, ये लेंथ निकालने के लिए देखो, एक क्या है, ये रॉड, ये एक स्लैब है, ये वाला एक स्लैब है, राइट। यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, तो हम लोग सपोज एक स्लैब को उड़ा दो, एक स्लैब को इसको उड़ा दो,
ठीक है, यहाँ पे सोचो कि स्लैब है ही नहीं, सिर्फ यहाँ से हम लोग एक रॉड ऐसे बाहर आया हुआ, एक रॉड मतलब उसका हाफ पोर्शन बाहर है और हाफ पोर्शन ये वाला स्लैब के अंदर में है, ठीक है। अब तुम इसको खींच रहे हो, मतलब एक टेंसाइल फोर्स दे रहे हो, राइट। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, एसएस है, तो उससे जो भी इसके किसके ऊपर एक्ट करेगा, इस एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर एक्ट करेगा, तो उससे जो फोर्स डेवलप होता है दैट इज द टेंसाइल फोर्स, ठीक है। नाउ यू आर पुलिंग इट। अब ये पुल करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे पुल करोगे तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, ये क्या निकल आएगा, नहीं निकलेगा, ये कुछ रेजिस्ट हो रहा है, इसकी वजह से अंदर ये घुस गया है, राइट। तो इसको तुम इजीली नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ द ग्रिप। यहाँ पे एक बॉन्डिंग स्ट्रेस डेवलप हुआ है, ठीक है। दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेस एंड जो स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप हो रहा है दैट इज द बॉन्डिंग स्ट्रेस, ओके। बॉन्ड करके रखा हुआ है, बॉन्ड कहाँ पे, कंक्रीट और ये जो सराउंडिंग है पेरिफेरल एरिया है, एक रॉड का जो सरफेस एरिया है उसके बीच में और कंक्रीट के बीच में एक ग्रिपिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से तुम खींचने से भी ये वाला क्या हो रहा है, नहीं आ पा रहा है, ओके। तो हमको अब फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या करना है, दिस मैक्सिमम कितना जा सकता है, इसका मैक्सिमम कितना ये पकड़ के रख सकता है, वही हमको चाहिए, ठीक है। तो ये है तुम्हारा टेंसाइल फोर्स एंड दिस इज द बॉन्डिंग फोर्स, तो हमको यही कैलकुलेट करना है, ओके। सो वी हैव टू इक्वेट दिस टू स्ट्रेंथ, ये है टेंसाइल फोर्स एंड दिस इज द बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, ओके। टेंसाइल फोर्स will it is axial force, मतलब it will act perpendicular to the cross section, तो इसका एरिया ये वाला है जहां पे ये एक्ट करेगा, लेकिन ये वाला स्ट्रेस बॉन्डिंग स्ट्रेस कहाँ पे एक्ट करेगा, सराउंडिंग सरफेस में, मतलब उसका जो पेरीफेरी एरिया है, सरफेस एरिया है, रॉड का सरफेस एरिया है, वहां पे बॉन्डिंग स्ट्रेस एक्ट करेगा, ठीक है। अगर इसका ये हम लोग पूरा ये अगर रॉड का चारों तरफ का एरिया अगर हम लेंगे, ठीक है, सो इट इज एक्टिंग ऑन दैट एरिया, नॉट ऑन द परपेंडिकुलर, ओके। ये जो क्रॉस सेक्शन है वहां पे एक्ट नहीं करेगा, कहाँ पे एक्ट करेगा, तुम किसी को पकड़ के रखे हो फोर्स से ऐसे करके, तो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, उसके हाथ का चारों तरफ का स्किन जो है वहां पे एक्ट कर रहा है वो वाला ग्रिपिंग फोर्स, ठीक है। सो दीज आर द टू डिफरेंट फोर्स, एक आएगा सरफेस एरिया में एक्ट कर रहा है और एक वाला आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया में, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये वाला स्ट्रेस जब हम लोग टेंसाइल फोर्स निकालेंगे तो कौन सा एरिया लेंगे, तब हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, ठीक है। और जब हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड फोर्स बॉन्डिंग फोर्स निकालेंगे तो कौन सा एरिया लेंगे, ये सरफेस एरिया, ठीक है, उसका चारों तरफ का जो सरफेस एरिया है वो वाला लेंगे, नॉट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर ये वाला? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो अब देखना है कि फॉर डिजाइन ये वाला बॉन्डिंग स्ट्रेस या बॉन्डिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन दिस फोर्स, ऑब्वियसली, नहीं तो ये तो निकल आएगा, राइट। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है ये वाला बॉन्डिंग ग्रिपिंग से, तो क्या होगा, ये तो निकल आएगा, ऐसा नहीं होना है। तो हमको आइदर दोनों को इक्वेट रखना है या ये वाला को ज्यादा देना है, राइट। सो दिस इज द फंडा, सी द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑन कहाँ पे, पेरिफेरी ऑफ ईच टाई बार, ओके, अप टू द एम्बेडेड लेंथ, मतलब कहाँ पे, जहां तक ये एम्बेडेड है, अंदर की तरफ है, दिस लेंथ, मतलब ये एल बार, अगर टोटल लेंथ ऑफ द बार इज एल टी, एल सफिक्स टी, लेंथ ऑफ द टाई बार इज एल सफिक्स टी, कितना होगा, हाफ इस तरफ एम्बेडेड है, हाफ इस तरफ एम्बेडेड है, सो एम्बेडेड लेंथ इज हाउ मच, एल टी बाई 2, ओके। तो यहाँ पे देखा एम्बेडेड लेंथ ऑन ईच साइड ऑफ द कंक्रीट स्लैब, मतलब इधर ये वाला या ये वाला लेंथ, सो एल बाई 2 इज दिस मच, टोटल एम्बेडेड लेंथ इज एल टी, मतलब जितना लेंथ ऑफ टाई बार है टोटली तुम्हारा एम्बेडेड है, लेकिन हम लोग कौन सा लेंगे, हाफ ऑफ द स्लैब का, मतलब एक साइड का पकड़ेंगे, मतलब कि कितना ये बॉन्ड स्ट्रेस कहाँ पे होगा, ये हाफ ऑफ द लेंथ में एक्ट करेगा, ओके। सो दैट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द टेंसाइल फोर्स डेवलप इन द टाई बार, सो टेंसाइल फोर्स इसकी वजह से होला, टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से, ओके। तो इसलिए हम लोग को देखो, नाउ सपोज टेंसाइल stress is SS and the cross sectional area is small as, so what is the tensile force, tensile stress इसका है SS, okay, ये Yes, वाला ma'am. जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है SS, ओके, एंड द किस एरिया में एक्ट कर रहा है, AS में, सो व्हाट इज द टेंसाइल फोर्स देन, फोर्स क्या होगा, इफ यू नो स्ट्रेस, इफ यू नो एरिया ऑन विच द स्ट्रेस इज एक्टिंग, फोर्स इक्वल्स टू क्या बोले थे हम, फोर्स स्ट्रेस और एरिया का रिलेशन क्या है, बोलो,
हाँ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, फोर्स एंड एरिया? स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या है? स्ट्रेस इक्वल्स टू है तुम्हारा एरिया बाय फोर्स। है फोर्स पर फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया। यूनिट क्या फोर है? बाय केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। केजी है यस मैम, लोड का, फोर्स का, और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, सो केजी पर फोर्स बाय सेंटीमीटर एरिया। स्क्वायर, राइट? सो यस फोर्स मैम, इक्वल्स टू क्या है? एस इंटू एरिया, मतलब स्ट्रेस इंटू एस इंटू एरिया, एरिया, एस राइट? बाय एरिया। तो यस मैम, टेंसाइल स्ट्रेस तुमको पता है, टेंसाइल जहां पे एक्ट कर रहा है स्ट्रेस वो एरिया पता है। सो व्हाट इज द टेंसाइल फोर्स? एस एस इंटू ए एस लिख सकते हैं ना हम लोग। यस मैम, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड इन ईच टाई बार, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक टाई बार का कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो ईच टाई बार में टेंसाइल फोर्स क्या एक्ट कर रहा है? एस एस इंटू स्मॉल ए एस, वेयर स्मॉल ए एस इज द पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डी इज द डायमीटर ऑफ ईच रॉड। ओके, तो ये वाला फंड, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का हमको आ गया, राइट हैंड साइड का ये वाला वैल्यू आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोले थे? बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड फोर्स। तो वहां पे क्या चाहिए? बॉन्ड फोर्स के लिए बॉन्डिंग स्ट्रेस इनटू इस एरिया में हम लोग ये स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। एज आई सेड, दिस इज एक्टिंग इन द पेरिफेरल एरिया। तो पेरिफेरल एरिया का फॉर्मूला है ये वाला सर्कल जो भी है इसका पेरीमीटर इनटू जितना लेंथ एम्बेडेड है। ओके, ये पेरीमीटर कितना है? दिस पेरीमीटर इज, फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का? सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? Area is pi r square. Now what is a perimeter formula of a circle? अगर ये सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस अगर r है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? ये इसका लेंथ कितना होगा? ये सर्कल का ये पेरीमीटर लेंथ कितना होना चाहिए? ये बाबा जानो ना, 2 मैम पाई r। सरकमफेरेंस ढूंढने से तो पेरीमीटर हो जाएगा। हाँ वही तो, सर्कमफेरेंस ही तो चाहिए। कितना है? 2 पाई r। 2 पाई आर। ठीक है, सो 2 पाई आर, या हम लोग लिख सकते हैं इसको पाई इंटू 2r। 2r इज व्हाट? डी, राइट? सो हम इसको लिख सकते हैं पाई डी, राइट? सो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस इज पाई डी। ठीक है, तो हम बोले थे इसका ये वाला का एरिया कितना होगा? पेरिफेरल एरिया इज पेरीमीटर या सरकमफेरेंस इनटू एम्बेडेड लेंथ, हाफ ऑफ द एम्बेडेड लेंथ व्हिच इज LT by 2। तो तुम्हारा देखो ये एरिया आएगा। सो दिस इज द पेरिफेरल एरिया व्हिच इज पाई डी, पेरीमीटर ये है, इनटू लेंथ LT by 2। ओके, मतलब ये एरिया में क्या एक्ट करेगा? इस एरिया में एक्ट करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं SB से। बॉन्ड है इसलिए SB लिख दिए हैं। ओके, सो SB इंटू पेरिफेरल एरिया विच इज पाई डी इंटू LT by 2। ओके, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला राइट हैंड साइड है, दोनों को इक्वेट करके देखो ये वाला आएगा। तो bond stress into area, peripheral area, and this is tensile stress into cross sectional area. Okay, if we equate both of these two, pi pi कट जाएगा, d यहाँ पे स्क्वायर था ये कट जाएगा, करने के बाद देखो L60 लेंथ ऑफ द टाई बार, ईच टाई बार का लेंथ आएगा क्या? SS by SD into D by 2। क्लियर? so this is the formula for length of the tie bar। तो ऐसे डिराइव किया गया है। ओके, तो SS क्या था? SS is the tensile stress in each Yes. tie bar, SB is the bond stress in each tie bar, ठीक है, D is the diameter of the each tie bar, LT is the length of the each tie bar। ओके, तो देखो ये है इन सेंटीमीटर, ये SS इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, SB इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाया D इज इन सेंटीमीटर। ओके, तो और देखो यहाँ पे SB का दो वैल्यू है, अगेन प्लेन बार के लिए ये है, डिफॉर्म्ड बार के लिए ये वाला है। ओके, सो दिस आर द फॉर्मूला। जैसे तुम्हारा SS का प्लेन बार का 1250 था और डिफॉर्म का 2000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, वैसे इसका भी अलग अलग वैल्यू है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम लोग को दो कंडीशन दे सकता है, दे विल आस्क यू टू डिजाइन फॉर प्लेन स्टील बार या दे विल आस्क यू टू डिजाइन फॉर डिफॉर्म स्टील बार, तब SB का अलग अलग वैल्यू हमको ले लेना है। ओके, so this is the formula for LT। तो हमको S स्पेसिंग आ गया, एरिया आ गया, लेंथ आ गया। ओके, नाउ व्हाट इज द डिजाइन स्टेप? कुछ नहीं, वही जो जो निकाला वही कैलकुलेट करना। फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द स्टील ऑफ द टाई बार।
रिक्वायर्ड पर मीटर लेंथ, ये है टोटल एरिया, पर मीटर लेंथ में कितना है, दिस वाज द फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड। सेकंड स्टेप क्या था, स्पेसिंग, ये भी निकाला है, इसका यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर में है, ठीक है। और स्टेप 3 क्या था, लेंथ निकालना है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप 4 क्या करना है, देखो ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है कि इतना लेंथ तुम्हारा टोटल एम्बेडेड रहेगा, मतलब दिस इज द लेंथ ऑफ द टाई बार, ठीक है। बट कुछ एरर होने की वजह से वी हैव टू इंक्रीज दिस लेंथ ऑफ द टाई बार, तो कितना इंक्रीज करना है, दे हैव एज पर द IRC 58 बोला है कि 10 सेंटीमीटर और इंक्रीज करना है। सपोज यहाँ पे तुम्हारा 50 सेंटीमीटर आया है, सॉरी LT का वैल्यू सपोज 70 सेंटीमीटर आया है, ठीक है, उसको और 10 सेंटीमीटर हमको इंक्रीज करना है, क्यों, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ बॉन्ड ड्यू टू पेंटिंग, मतलब बीच बीच में पेंटिंग भी करना पड़ता है ना, जैसे कि यहाँ पे गैप अगर रहेगा तो पेंट की वजह से भी बॉन्ड लूज हो जाता है, राइट, इपॉक्सी पेंट जो बोल रहे थे उससे बॉन्डिंग स्ट्रेस लूज हो जाता है, तो अगर हम और अंदर की तरफ डाल देंगे तो और स्टिफ हो जाएगा ये वाला, राइट, तो लेंथ हमको 10 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉस इन बॉन्ड ड्यू टू पेंटिंग, और इंक्रीजमेंट करना है बिकॉज ऑफ द मिस अलाइनमेंट, हम कहते परपेंडिकुलर ले करना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये परपेंडिकुलर नहीं होकर कुछ इधर उधर 45 डिग्री या 60 डिग्री में ले कर दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से ये लेंथ एक्चुअली जितना चाहिए था लेंथ सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगेन वी हैव टू इंक्रीज दैट लेंथ, ओके। तो मिस अलाइनमेंट की वजह से भी कितना इंक्रीज करना है, और सेंटीमीटर इंक्रीज करना है, ओके। सो दिस आर द डिजाइन स्टेप, कुछ नहीं, एरिया ऑफ स्टील निकालो, स्पेसिंग निकालो और लेंथ निकालो, फिर लेंथ को 15 और ऐड कर दो, अगर 70 है तो 70 प्लस 15 सेंटीमीटर, ओके, और ऐड करना, वी विल गेट द लेंथ। तो एक बार ऐसे गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या है, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या दिया है, अ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट हैज अ थिकनेस ऑफ 26 सेंटीमीटर, H दिया है, ओके, एंड द लेन विड्थ ऑफ 3.5 मीटर, B दिया है, ओके, कैपिटल B दिया है। डिजाइन द टाई बार्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, क्या क्या दिया है देखो, अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस इन स्टील टाई बार, कंडीशन दे दिया है, डिफॉर्म्ड बार, ठीक है, विच इज 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये SS है ना SB है, मेनली तो दो टाइप का फॉर्मूला चाहिए स्ट्रेस, राइट, एक SS और SB। नाउ व्हाट इज दिस, ये SS है कि SB है, SB। नहीं SB क्यों है, यहाँ पे क्या लिखा है, अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस इन SS। SS टेंसाइल स्टील है, ये वाला टेंसाइल स्ट्रेस है, ओके। और यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट गामा C दिया है इतना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट F का वैल्यू दिया है, स्मॉल f का 1.2, अगर नहीं देता तो 1.5 एज्यूम करना पड़ता था, और दूसरा क्या दिया है, अलाउएबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म्ड बार। अब बोलो ये क्या है, SS है ना SB, SS कितना है, SB कितना है, हमको बोलो। SS 2000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब नहीं, स्ट्रेस है ना, हाँ स्क्वायर है मैम, स्क्वायर। तो एंड दिस इज SB, देखो सब कुछ दिया है तुमको, सिर्फ बोला है डिजाइन करो, ओके। सो फर्स्ट हमको क्या करना है, हम तो बोले थे SS दिया इतना, SB दिया है, गामा से इतना है, H इतना है, F दिया है, B दिया है, ओके। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, टोटल एरिया ऑफ स्टील निकालो, टोटल एरिया ऑफ स्टील यूजिंग दिस फॉर्मूला, पर मीटर लेंथ में कितना होगा, कुछ नहीं, फॉर्मूला में पुट कर दो। F क्या क्या है देखो, F इज 1.2, B इज 3.5, H इज 26 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है, H इज 26 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, ठीक है, ये वाला। गामा C इज गिवन 2400, S इज गिवन, तो इतना पर मीटर लेंथ में टोटल एरिया ऑफ स्टील इज दिस मच। नाउ व्हाट इज द स्पेसिंग ऑफ द टाई बार, सिंपल फॉर्मूला, S इक्वल्स टू 100 AS बाय S। अब ये वाला क्या है, एक रॉड का वो है तुम्हारा, एक रॉड का एरिया है, राइट, तो दिस इज पाई d स्क्वायर, राइट, पाई बाय 4 d स्क्वायर है ये वाला, एक रॉड का एक रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया। सो वी हैव एज्यूम, सी लेट अस एज्यूम, हम लोगों ने एज्यूम बोला था कितना होगा डायमीटर, 12 मिलीमीटर टू 16 मिलीमीटर बोले थे, राइट, yes. तो इसमें 1.2 सेंटीमीटर में लेना है, ओके। सी एरिया का स्टील क्या है, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो डी का भी यहाँ पे सेंटीमीटर में ही करना है, तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 mm इक्वल्स टू 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर पुट करके देखो, स्मॉल as आएगा इतना, जस्ट यहाँ पे स्मॉल as, टोटल as तो हमको निकाला ही है,
स्पेसिंग कितना आएगा, डिसमस सेंटीमीटर। तो ये भी होगा, स्पेसिंग भी हो गया। अब आते हैं लेंथ ऑफ द टाई बार। सी दिस इज द फॉर्मूला, ये डिराइव कर देते हैं हम। एस 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 बी इंटू डी बाई टू, डी हम एज्यूम कहते हैं 1.2, एस एस गिवन है 2000, एस बी 24.6, तो लेंथ आ रहा है 48.8 सेंटीमीटर। अब हम बोले थे ये क्या यही लेंथ होगा, 48.8 सेंटीमीटर ही होगा फाइनल लेंथ ऑफ द टाई बार, या इससे और ज्यादा होगा, ज्यादा होना चाहिए। तुम्हारा यहीं पर आंसर खत्म ना कि और वी हैव टू इंक्रीज दिस लेंथ? नहीं मैम, यही पर। यहीं पर खत्म। ये क्या बोले थे हम लोग, ये जो भी लेंथ आएगा उसको इंक्रीज करना है बाय 10 बिकॉज ऑफ बॉन्ड लॉस एंड बाय मोर बाय 5 बिकॉज ऑफ मिसअलाइनमेंट। तो टोटल कितना इंक्रीज करना है, 10 + 5 15 सेंटीमीटर और 15 increase सेंटीमीटर। करना है। तो जो भी आएगा LT लास्ट में उस फॉर्मूला से we have to increase it by 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 48.8 आया था बिकॉज यूजिंग दिस Okay, फॉर्मूला, तो ऐड करो 64 आएगा। ओके, सो दिस Okay, इज ma'am. द डिजाइन ऑफ द टाई बार। ओके, सो ऐसे डिजाइन करना है। ओके मैम। एंड द कोड विच इज यूज इज IRC 58, ये भी तुम लोग Okay, ma'am. देख सकते हैं। एनी डाउट? नो मैम। ओके, पहले